Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Sintu Nandi from Global Concept School. In the last 3 videos, we have already discussed about voice change on the topic of present tense, past tense and future tense. Today we are going to discuss about voice change on the topic of modal verbs and imperative sentences. And this video will be applicable from class 6th to 10th. So please watch this video till the end and make sure that you are having a copy and pen, and please note down the materials whatever you are learning in this video. So let's start today's topic. So what is the rule of modal verb? Active voice subject plus modal verb plus verb का first form plus object. Passive voice object become subject. Okay, so plus modal verb plus be plus v3 plus by plus subject. What is the example of positive sentence? They can solve it. Here in this example, they is the subject, can is the modal verb, solve is the first form of verb and it is the object. So object becomes subject. So it can be solved by them. Solved is the third form of solve and they by them. What is the example of negative sentence? He may not win the race. Here he is the subject, may is the modal verb, win is the first form of the verb and the race is the object. So the object becomes subject. The race may not be owned by him. Interrogative sentence. Now should we help the poor baby? Here you can see in the interrogative sentence the auxiliary verbs or the modal verbs will sit before the subject. So we have to start in this way also. Should the poor baby is the object, so subject होके बैठेगा should the poor baby be helped by us, and always put the question mark in the interrogative sentence at the end of the sentence. Next, परफेक्ट टेंस. मॉडल वर्ब्स का परफेक्ट टेंस के ऊपर क्या रूल है? एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस v3 प्लस ऑब्जेक्ट. पैसिव में क्या होगा? ना ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होके बैठेगा, ठीक है, प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव बीन. हैव के साथ क्या ऐड होगा? बीन, हैव बीन, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस? शी वुड हैव given you the books. Here she is the subject, would have given is the verb, you is the object and the books is the object also. So in this sentence there are two objects, number one you and number two the books. So you can start in this way also. You subject होके बैठेगा, you would have been गिवेन द बुक्स बाय हर. आप यह भी ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, द बुक्स को आप ऑब्जेक्ट लेके स्टार्ट कर सकते हैं. द बुक्स वुड हैव गिवेन यू बाय हर, ठीक है. दोनों ऑब्जेक्ट से आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट को आप उठा सकते हैं, ठीक है, नो इशू. नेगेटिव सेंटेंस. एनीवन कुड नॉट हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम. एनीवन इज द सब्जेक्ट, कुड नॉट हैव इज द मॉडल वर्ब, सॉल्व्ड इज द वर्ब का थर्ड फॉर्म, दिस प्रॉब्लम इज द ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होके बैठेगा, तो क्या कैसे स्टार्ट करना है ना? दिस प्रॉब्लम कुड नॉट हैव बीन सॉल्व्ड बाय एनीवन. ओके. इंटरोगेटिव सेंटेंस. शुड यू हैव डन इट अर्लियर? क्वेश्चन मार्क. तो कैसे स्टार्ट करना है? शुड पहले यूज करना है सब्जेक्ट के पहले, तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट था, ठीक है, एंड इट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होके बैठेगा. शुड इट हैव बीन डन अर्लियर बाय यू. हियर यू कैन सी द मीनिंग ऑफ द मॉडल वर्ब्स. कैन मीन्स सकता है, कुड मीन्स सका, पाया, सकता था, ठीक है.
शुड मीन्स क्या, चाहिए अर्थ यूज़ कर सकते हैं। शैल मीन्स भी चाहिए, ठीक है। शैल है प्रेजेंट टेंस का फॉर्म और शुड है पास्ट टेंस का फॉर्म। मस्ट मीन्स चाहिए, गा गी गे का सेंस में, और जरूर कोई भी जरूर काम पे आपको यूज़ करना है मस्ट का। मे माइट का मीनिंग भी क्या है, सकता है, ठीक है। ओ कम कर सकती है, ठीक है। तो मे और माइट का यूज़ करना है। हैज़ टू और हैव टू, करना है और करना पड़ता है, ठीक है। हैड टू मीन्स क्या होता है ना, करना था, करना पड़ता था, करना पड़ा। यूज टू मीन्स रेगुलरली कोई भी काम कर सकते हैं, यूज टू, ठीक है, किया करता था। वुड का मीनिंग क्या है ना, करता था। वुड लाइक टू मीन्स करना चाहेगा, ठीक है। विल हैव टू करना होगा। मे और माइट हैव टू करना पड़ सकता है, ठीक है। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ modal verbs and meaning also. Next, passive voice of imperative sentences. There are three types of sentences in the category of imperative sentence. First one order, second one advice और third one request, ठीक है। सो ऑर्डर और कमांड, कोई भी सेंटेंस में क्या, किसी को आप ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रहा है, कमांड दे रहा है, ठीक है। इस सेंस में आपको एक्टिव और पैसिव, एक्टिव वॉइस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो एक्टिव वॉइस क्या रूल क्या रहता है, एक्टिव वॉइस में पहले आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, देन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट ओमिटेड रहता है, ठीक है। तो पैसिव में कैसे होगा, लेट के द्वारा आपको स्टार्ट करना है। यू हैव टू स्टार्ट द वर्ड विद द वर्ड लेट, देन सब्जेक्ट, देन बी, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल्स, एफर्मेटिव सेंटेंस, क्लोज द डोर, ओके। सो क्लोज इज द वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। द डोर इज द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर कैसे करना है, आंसर कैसे होगा ना, लेट के द्वारा स्टार्ट होगा। लेट द डोर ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होके बैठेगा। लेट द डोर बी क्लोज्ड, क्लोज्ड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ क्लोज, अंडरस्टूड। नेगेटिव सेंटेंस ना, डोंट टच द इलेक्ट्रिक वायर। सो यहाँ पर कैसे होगा, डोंट टच, ये क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस है तो इसीलिए डोंट का यूज़ किया है। द इलेक्ट्रिक वायर हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो लेट के द्वारा स्टार्ट करना है, लेट द इलेक्ट्रिक वायर नॉट बी टच्ड, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है एडवाइस। एडवाइस सेंटेंस में कैसे होगा ना, यहाँ पर भी एक्टिव वॉइस में पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के द्वारा स्टार्ट होता है, देन ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में कैसे करना है आपको ना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होके बैठेगा, और क्या होगा, शुड बी का यूज़ होता है, ठीक है। एडवाइस सेंटेंस में आपको शुड बी का यूज़ करना पड़ता है, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल्स, रेस्पेक्ट द एल्डर्स। तो यहाँ पर रेस्पेक्ट क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, द एल्डर्स है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करना है ना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होके बैठेगा, द एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, ठीक है। रेस्पेक्टेड है आपका थर्ड फॉर्म किसका, रेस्पेक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस, डोंट चीट योर फ्रेंड्स। ये क्या, आप किसी को एडवाइस दे रहा है, ठीक है। डोंट चीट योर फ्रेंड्स, आपका दोस्त को चीट नहीं करना है, नहीं करना चाहिए। तो नहीं करना चाहिए सेंस में आपको क्या, शुड का यूज़ करना है। तो कैसे होगा, योर फ्रेंड्स हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो जाएगा ना, योर फ्रेंड्स शुड नॉट बी चीटेड। चीटेड क्या है ना, थर्ड फॉर्म है किसका, चीट का थर्ड फॉर्म है चीटेड। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट सेंटेंस में कैसे करना है ना, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या ओमिटेड रहता है, देन ये जो सेंटेंस है ये प्लीज़ और काइंडली के द्वारा स्टार्ट होता है। तो आप इजीली मतलब अंडरस्टैंड हो सकता है जो एक क्या रिक्वेस्ट सेंटेंस है, प्लीज़ और काइंडली आपका रहेगा सेंटेंस में। देन क्या है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में क्या करना है ना, प्लीज़ और काइंडली को आपको रिप्लेस करके क्या लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, देन बाकी जो सेंटेंस है उसको ऐड करना है, ठीक है। तो पहले आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू के द्वारा स्टार्ट करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ हेल्प मी। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में प्लीज़ का वर्ड है, ठीक है। तो प्लीज़ को रिप्लेस करके जस्ट आपको यूज़ करना है क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ठीक है। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, टेक योर लंच प्लीज़। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर लंच,
So let's solve some exercise on the topic of passive voice of imperative sentences. Okay. So first one, people should obey the laws. ठीक है, तो यहाँ पर क्या पीपल आपका सब्जेक्ट है, शुड ओबे हो गया वर्ब और द लॉज है ऑब्जेक्ट. तो द लॉज सब्जेक्ट होके बैठेगा, द लॉज शुड बी ओबेड. ठीक है, तो ओबे का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ओबेड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दे माइट नॉट हेल्प मी. ओके, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, आई. तो मी आई हो गया. ठीक है, आई माइट नॉट बी हेल्प्ड बाय देम. क्वेश्चन नंबर थर्ड, ही वुड हैव टॉट इंग्लिश. तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है ना, ही. ठीक है, टॉट क्या हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और इंग्लिश हो गया आपका ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होके बैठेगा. इंग्लिश वुड हैव बीन टॉट, ही है तो क्या होगा, बाय हिम. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द पियन विल हैव रंग द बेल. यहाँ पर क्या है ना, द पियन सब्जेक्ट है, विल हैव आपका ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गया, रंग हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, द बेल आपका ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो ये भी मॉडल वर्ब का एग्जांपल है. तो द बेल सब्जेक्ट होके बैठेगा, द बेल विल हैव बीन, हैव है तो क्या यूज़ करना है, बीन का यूज़ करना है, BEEN. ठीक है, द बेल विल हैव बीन रंग बाय द पियन. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, शट ऑल द विंडोज़. किसी को आप ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, ऑर्डर और कमांड दे रहा है, जो शट ऑल द विंडोज़. तो इसमें कैसे करना है ना, लेट के द्वारा स्टार्ट करना है. मैंने बताया लेट ऑल द विंडोज़ बी शट, लेट बी. ठीक है, तो लेट के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, लेट ऑल द विंडोज़ बी शट. शट का थर्ड फॉर्म क्या होता है ना, शट ही होता है. क्वेश्चन नंबर सिक्स, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क. ठीक है, ये भी ऑर्डर, किसी को आप ऑर्डर और कमांड ऑर्डर दे रहा है, जो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क. तो ब्रिंग हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अ ग्लास ऑफ मिल्क हो गया आपका ऑब्जेक्ट. तो एक कैसे स्टार्ट करना है, लेट के द्वारा स्टार्ट करना है, लेट अ ग्लास ऑफ मिल्क बी ब्रॉट. ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है ना, ब्रॉट. क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, हेल्प द पोर. ठीक है, एक किसी को आप एडवाइस दे रहा है, जे हेल्प द पोर, ऑलवेज हेल्प द पोर. तो इसमें क्या कैसे सेंटेंस कैसे होगा पैसिव वॉइस का, तो द पोर आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होके बैठ जाएगा, द पोर शुड बी हेल्प्ड. ठीक है, गरीब को हेल्प करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 8, लव योर कंट्री. तो योर कंट्री हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट होके बैठ जाएगा, योर कंट्री शुड बी लव्ड. क्वेश्चन नंबर 9, काइंडली क्लोज द डोर. एक है ना रिक्वेस्ट, इस सेंटेंस में किसी को रिक्वेस्ट मीनिंग आ रहा है. ठीक है, काइंडली क्लोज द डोर. तो काइंडली और प्लीज़ इस दोनों वर्ड को रिप्लेस करके क्या लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू. तो क्या करना है ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर. काइंडली और प्लीज़ वर्ड को रिप्लेस करके आपको यूज़ करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू. बाकी जो सेंटेंस है उसी को लिखना है. क्वेश्चन नंबर 10, मेंटेन साइलेंस प्लीज़. सो सेंटेंस कैसे होगा ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू मेंटेन साइलेंस. आपको रिक्वेस्टेड किया जा रहा है जो साइलेंस रहने के लिए. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड. सो थैंक यू एवरीवन for watching this video.